آئے مٹانے والوں تم مٹ جاؤ گے لیکن قرآن نہیں مٹے گا، برباد کرنے والوں تم برباد ہو جاؤ گے لیکن قرآن برباد نہیں ہوگا۔ ترپورہ کی سرزمین پر مسجدیں جلا دی گئی لیکن سجدہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے زمین کی کمی نہیں ہے۔ ہماری مسجدوں میں قرآن کے نسخے جلا کر راکھ کر دیے گئے لیکن اسی مسجد کے پڑوس میں ایک 10 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے، وہ الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ گنڈوں سے کہتا ہے کہ تمہاری ہستی نہیں جو اس قرآن کو مٹا دو، تمہاری ہستی نہیں جو تم ہمیں برباد کر دو، تمہاری ہستی نہیں جو ہماری مقدس کتاب کو اس دنیا سے بینڈ کر دو، تم خود مٹ جاؤ گے، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، تمہیں ہٹلر اور حجاج کے سب میں لکھا جائے گا، لیکن تمہارے باپ میں اتنی بڑی طاقت نہیں ہے جو ہماری اس کتاب کو جلا سکو۔ یہ 9 سال کا اور 10 سال کا بچہ چیخ چیخ کر قرآن کی تلاوت کر کے مودی اور یوگی کے کان کے پردے پھاڑ رہا ہے اور میسج دے رہا ہے مٹانے والوں مٹ جاؤ گے، برباد کرنے والوں تم خود برباد ہو جاؤ گے، لیکن نہ اسلام مٹے گا، نہ مسلمان مٹے گا، نہ قرآن مٹے گا۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ مذہب ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ محمد رسول اللہ اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ مسلمان قیامت کی صبح تک ان کا دل سے احترام کرتا رہے گا اور ان کی باتوں پر عمل پیرا ہوگا۔ ان کی شان میں گستاخی کرو گے تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن محمد رسول اللہ کی عزت و عصمت پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ یہی ہمارا مذہب ہے۔ ہمیں چڑھاؤ مت، ہمیں کٹولو مت، ہمارا امتحان مت لو۔ ہم صبر کے پیکر ہیں، لیکن صبر کا پیمانہ جب لبریز ہوتا ہے تو ہم جان دینا بھی جانتے ہیں اور جان لینا بھی جانتے ہیں۔ ہمارے اسلام نے ہمیں آخری راستہ کچھ اور بھی بتایا ہے کہ دشمن کے سامنے ہتھیار مت ڈالو، لڑتے ہوئے یا تو مر جاؤ، شہید ہو جاؤ، یا مار کر غازی کہلاؤ۔ ہمارے مذہب نے پھر ہمیں اس بات کی اجازت بھی دی ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ راجنیتی جس گندے طریقے سے کر رہے ہو کرتے رہو، لیکن ہندو مسلمان کی راجنیتی کر کے اپنے پیروں میں کلہاڑی مت مارو۔ ہٹلر مٹ گیا، حجاج مٹ گیا، آنے والا 100 سال کے بعد کی تاریخ اس وقت افسوس یہ ہے کہ مولوی جرجیز زندہ نہ ہوگا، ہم اور آپ زندہ نہ ہوں گے۔ آنے والی 100 سال کی تاریخ، 100 سال کے بعد کی تاریخ میں ہٹلر کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی ہے، اتہاس کبھی کسی کو क्षमा نہیں کرتا ہے، اتہاس کسی کو معاف نہیں کرتا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ اتہاس تمہارے منہ پر ظلم کا ٹھپا لگائے گا اور تمہیں ظالم کہنے پر مجبور کر دے گا، ظالم کہلوانے پر مجبور کر دے گا۔ یہ ہمارا اتہاس رہا ہے۔ ورنہ اسلام بھائی چارے کی دعوت بھی دیتا ہے، ایک دوسرے کو اپنا بلڈ دینے کی دعوت بھی دیتا۔ نہیں، اگر آپ کا بلڈ کسی کو کام آ رہا ہے، خیر مسلم ہی صحیح، لیکن دے کر اس کی جان بچاؤ۔ قرآن ہمارا یہ بھی کہتا ہے کہ وَمَنْ أَحْيَا النَّاسِ، جس نے ایک انسان کو، مسلمان نہیں کہا ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا، ایک نفس کو زندگی بخشی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کو زندگی بخشی۔ ہمارا قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ہندو مسلم مت دیکھو، سکھ عیسائی مت دیکھو، اگر کسی کی جان جا رہی ہے اور تم بچانے پر قادر ہو، کوئی ڈوب رہا ہے اور تمہیں تیرنا آتا ہے تو تیر کر گوتا لگاؤ اور اس کو بچاؤ۔ تم نے ایک کو نہیں بچایا، پوری انسانیت کو تم نے بچایا۔ انسانیت کی ساری حدیں پار کرنے کی اجازت دیتا ہے اسلام، لیکن عبادت میں اور دین کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام۔ اسلام کا کلمہ ہی ہمیں یہ بتاتا ہے اللہ کو بعد میں مانو، پہلے دوسرے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو۔ اور آپ دیکھ لو، پہلے یہی کہا جاتا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ جب انسان لا الہ کہتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے۔ لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ پہلے انکار کرو سب کا، جب سب کا انکار کر کے ٹھکرا دو تب ایک کا اقرار کرو، الا اللہ، صرف ایک اللہ کے۔
उसको ये भी गवारा नहीं कि मुझे मानकर दूसरों का इनकार करो, नहीं, पहले दूसरों का इनकार करो फिर मुझे मानो। एक लम्हे के लिए अल्लाह को ये कबूल नहीं है। मान लो अल्लाह तू हमारा माबूद है, ये हमने मान लिया, अब कह रहे और दूसरे लोगों को हम अपना माबूद नहीं मानते। लेकिन जब हमने कहा इसका मतलब ये है कि उस वक्त तक दूसरों को मानता था, अल्लाह को मानने के बाद दूसरों का इनकार किया जा रहा है, अल्लाह को ये मंजूर नहीं है, अल्लाह को मंजूर नहीं है। अल्लाह ने कहा पहले सबका इनकार कर दो, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरा भी कर दो, बाद में इकरार करो ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, फिर कहो इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। पहले इनकार करो सबका, फिर इकरार करो मेरा। ये है इस्लाम की तौहीद। अच्छा आप ही बताओ, और अकल से सोच के बताओ, पौवा खाली वालों, कितने लोग दिल्ली में काम करते हैं, कितने बंबई में काम करते हैं, बहुत लोग हैं। आप वहां कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आपकी बीवी यहाँ रहती है। ईमानदारी के साथ बताओ, यहाँ से कोई आदमी घूमने गया दिल्ली और वहां से आपके घर रुका है, 2-4 दिन घूमने के बाद वापस आता है, आपने कहा साहब अब तुम अपने गांव जा रहे हो, मैं यार 4-5 महीने से यही हूँ, एक काम करो, एक साड़ी मैं खूबसूरत खरीद के दे रहा हूँ, ये मेरी बीवी को दे देना घर जाकर। और आप खूबसूरत साड़ी दिलाकर 5-6 हजार 10,000 की साड़ी खरीद कर उसको देते हैं कि मेरी बीवी को दे देना। अब आपका पड़ोसी या आपके गांव का आदमी घर आता है और दरवाजा खटखटाता है, आपकी बीवी दरवाजा खोलती है, उसने कहा लीजिए साहब, आपके पति ने परदेश से आपके लिए साड़ी भेजी है, तो बीवी को तारीफ किसकी करना चाहिए, शौहर की या साड़ी देने वाले की? शौहर की। अकल कहती है शौहर की, लेकिन बीवी अगर दरवाजा खोलते ही कहे ओ आप साड़ी लाए हैं, और दरवाजा खोल दे और लकड़ी के दरवाजे के साथ साथ अपना दिल का भी दरवाजा खोल दे, आइए एक्सक्यूज मी, अंदर तशरीफ लाइए, चाय पी लीजिए, सज के बैठ जाए, आप कितने अच्छे हैं, आप हमारे लिए साड़ी लेके आए वहां से, और किसी ने फोटो खींच के शूट करके भेज दिया आपको, तो आपको क्या होगा? डाइन कुतिया, साड़ी मैंने भेजी, तारीफ उसकी कर रही है, चिपक कर उसके साथ बैठी है। और हो सकता है कि आप कैश में आ जाओ और वहीं से फोन करे उसके साथ बैठ के चिपक के बात करती है, तलाक तलाक तलाक। अब तो कानून भी बन गया, जो एक साथ तलाक देगा 3 साल की सजा। आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते। साड़ी आप दे रहे, आपके गांव का एक आदमी लाकर आपकी बीवी को दे रहा है, आपकी बीवी उसकी तारीफ कर देती है, उसके साथ बैठ जाती है, उसको एक कप चाय बनाकर प्यार के साथ उसको पिलाती है। आपको साड़ी देने वाले की इतनी, अपनी बीवी की इतनी बेगैरती बर्दाश्त नहीं होती है, आप वहां से अपनी बीवी को तलाक 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 की गोलियां दाग देते हैं। वो हमारा परवरदिगार इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि शादी तेरी हुई, मुलाकात तूने अपनी बीवी से की, रब्बे हबली मिनस सालिहीन कह कर तूने बेटा मांगा, बेटी मांगी, मैंने तेरी बीवी के रहम में बच्चे का वजूद मौजूद कर दिया। जैसे जैसे बच्चा रहम मादर में बड़ा होता जा रहा है, माँ का पेट भी बड़ा होता जा रहा है, बच्चा भी दुनिया में आया भी नहीं है, बच्चा भी दुनिया में आया भी नहीं है कि माँ की पिस्तान में उस बच्चे की ग़िज़ा पहले आ गई। वो माँ जो अभी तक जिसके पिस्तान से दूध का एक कतरा नहीं निकलता था, लेकिन अल्लाह को मालूम है कि ये बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो आते ही रोटी नहीं खाएगा, आते ही चावल नहीं खाएगा, आते ही मीट नहीं खाएगा, आते ही भैंस का और गाय का दूध इसको हजम नहीं होगा, इसलिए इसको हल्के दूध की जरूरत है जो इसकी माँ की पिस्तान में मौजूद होना चाहिए। मेरे भाइयों, अभी हम माँ के पेट की अंधेरी कोठरी में बच्चे का वजूद था,
لیکن تیرے وجود میں آنے سے پہلے, دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے اس نے ہوا پہلے ہی سے موجود کر دی تاکہ تجھے سانس لینے میں دقت نہ ہو. تو پیدا ہوا, تیری ماں کی پستان میں اس نے دودھ پہلے ہی سے بھر دیا, اور ماں کی پستان میں, جو آپ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, دینی مسئلہ ہے, معلوم ہونا چاہیے, وہ ماں کی پستان جو بچہ اپنے منہ سے دباتا ہے, جس کو ہم اور آپ ماں کی پستان کا نپل بولتے ہیں, اس نپل کے اندر کئی ہزار سوراخ ہوتے ہیں, کئی ہزار سوراخ ہوتے ہیں. اس سوراخوں سے چھن چھن کر دودھ آتا ہے. اللہ رب العالمین نے ماں کی اس پستان کے اندر ہزاروں سوراخ اس لیے کر دیے کیونکہ اگر وہ سوراخ نہ ہوتے تو ایک دم بچے کے منہ میں اتنا دودھ آ جاتا کہ جس کا لیور اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا, ہضم نہیں کر سکتا تھا. اس لیے ہلکے ہلکے سوئی کے سوراخ کے برابر, اس سے بھی ہلکے ہلکے نوک کے برابر اتنے سوراخ کر رکھے ہیں کہ بچہ جب ماں کی پستان سے چاہے جتنی تیز دودھ چوسے, وہ دودھ اس کے منہ میں اتنا ہی آئے اور اتنا ہی پیٹ میں جائے جتنا اس کا لیور ہضم کر سکتا ہو. میرے بھائیو, یہ ساری قدرت کی کاریگری ہے, قدرت کی کاریگری. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. تو اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھا, تیری ماں کھانا کھا رہی تھی, اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے پیر بنا رہا تھا, تیری ماں پانی پی رہی تھی, اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا ہاتھ بنا رہا تھا, تیری ماں چولہے پر چاول پکا رہی تھی, اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بنا رہا تھا, تیری ماں سو رہی تھی, کروٹیں بدل رہی تھی, اور اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا دل بنا رہا تھا, تیرا ہارٹ بنا رہا تھا. اللہ رب العالمین کہتا ہے فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ, ہم نے بنا سوا کر درست بھی کر دیا. وہ ٹارچ جو تم زمین پہ مارتے ہو تو اس کی روشنی 100 میٹر سے دور نہیں جاتی ہے, 200 میٹر سے دور نہیں جاتی ہے, چاہے کتنی تیز اسپیڈ کی ٹارچ ہو, 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر سے زیادہ اس کی روشنی نہیں جاتی ہے. اللہ نے تمہارے دماغ میں, تمہارے بھیجے میں, تمہارے مستشک میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈالا اور تمہیں 2 چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ, تمہیں ٹارچ دے دی, آنکھیں دے دی, جس میں 1 سیکنڈ کے اندر 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی پر چمکنے والے سورج کو دیکھ لیتی ہیں, 2,40,000 میل کی اونچائی پر لٹکے ہوئے چاند کو دیکھ لیتی ہے. میرے بھائیوں, وہ اللہ یہ کیسے برداشت کرے گا, اس کی غیرت یہ کیسے گوارا کرے گی؟ یہ سارے کام میں رحم مادر میں کروں, ماں کی پستان میں دودھ کے سوراخ میں پیدا کروں, بچے کے لیور کو ہضم کرنے والا دودھ میں دوں, بچہ دنیا میں آئے اس کے لیے روشنی سورج کی شکل میں دوں, اس کے لیے آکسیجن ہوا کی شکل میں دوں. لیکن جب بچہ دنیا میں وجود میں آ جائے تو کہہ دو یہ بریلی والے نے دیا ہے, یہ کچھوچا والے نے دیا ہے, یہ پھلواری والے نے دیا ہے, یہ بابا کی کرامت ہے, یہ بابا کا دیا ہوا ہے. میرے بھائیوں, آپ اپنی بیوی کی اتنی سی غیرت برداشت, بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے برداشت کرے گا؟ سب کچھ کروں میں, تو میں رحم مادر میں پانی کے قطرے سے لے کر 2.5 کلو کا 3 کلو کا بچہ میں بناؤں اپنی کاریگری, اور جب پیدا ہو جائے تو اس پر ٹائٹل دوسرے کا لگایا جائے, غیر کا لگایا جائے. میرے بھائیوں, یہ بالکل اللہ رب العالمین اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کرے گا. اسی لیے فرمایا لوگوں میرے پاس گناہوں کا سمندر بھی لے کر آؤ گے تو میں معاف کر دوں گا, لیکن شرک لے کر آؤ گے تو میں معاف نہیں کروں گا. شرک کرنے والوں کو ڈائریکٹ میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا, کیونکہ مشرک نے میرے مقابلے میں دوسرا خدا بنا لیا تھا, مشرک نے میرے مقابلے میں دوسرے کو اپنا لیا تھا, مشرک نے میری طاقت کے برابر دوسرے میں طاقت تصور کر لی تھی. میں بیٹا بیٹی دینے والا ہوں, مشرک نے یہی طاقت دوسرے کے اندر بھی مان لی تھی. اس لیے میں اس کو کبھی نہیں بخشوں گا, کبھی نہیں جنت میں جانے دوں گا, اس کو ہمیشہ جہنم میں ہی جلاؤں گا. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ رب العالمین شرک برداشت نہیں کرتا.
ہمیں سوچنا ہے, یہ غور کرنا ہے. یہ مذہب اللہ نے ہمیں دیا ہے, شیتل چھایا میں آؤ اس کے. اس لیے دنیا کی ہر کتاب پڑھ جائیے آپ, توحید کہیں ختم نہیں ہوئی ہے, توحید کہیں ختم نہیں ہوئی ہے. بائبل پڑھو, there is no God but God is only one. ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے. there is no God, کوئی خدا نہیں ہے, but ہے only one, ایک ہی اللہ, دوسرا نہیں ہے ہی نہیں کوئی. تورات پڑھو, یہودیوں کی کتاب تورات پڑھو. موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل میں جا رہے ہیں اور ایک بزرگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کب سے اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا. کہا کیا تمنا ہے؟ اس نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام ہنس کر کہنے لگے میں ہی موسیٰ ہوں. اس نے کہا کتاب دکھاؤ تورات. موسیٰ نے کتاب دکھلائی, وہ ایمان لے آیا, پھر عبادت میں لگ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جنگل میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہو, مجھے کوئی کام بتاؤ, تمہارے لیے کوئی ضرورت ہو تو. کہنے لگا موسیٰ 2-3 دن سے کوئی کھانا لے کر نہیں آیا, چلو بغیر کھانے کے تو میں زندہ رہ لوں گا, لیکن پیاس بہت لگ رہی ہے. میرے لیے کوئی پانی لایا کرتا تھا, آج وہ پانی بھی نہیں آیا. آئے موسیٰ تجھے کہیں پانی مل جائے تو لے آ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی کا پیالہ تھا. یہ قرآن نہیں, حدیث نہیں ہے, تورات کہہ رہی ہے. تورات جیسے میں وید پڑھتا ہوں ویسے تورات بھی پڑھ کے بتا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی کا پیالہ تھا, پانی کا پیالہ لے کر جنگل میں ڈھونڈنے لگے, لیکن پانی نہیں ملا. کنواں تلاش کرتے, کنواں نہیں ملا. تلاش کرتے 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 ذرا شہر کی آبادی کے باہر نکل گئے, پانی مل گیا. پانی لے کر آتے تھوڑی دیر ہو جاتی ہے. اس بزرگ میں اور موسیٰ کے درمیان 100 قدم کا فاصلہ رہتا ہے. وہ بزرگ چیخ کر کہتا ہے موسیٰ جلدی آ, میری حلق سوکھ چکی ہے, میرا گلا سوکھ چکا ہے, مجھے پانی پینا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اسپیڈ بڑھائی, اس بزرگ سے کہا لو میں پانی لے کر آ گیا. اس بزرگ کو سہارا دیا, پانی کا پیالہ اس کے حلق تک لے گئے, اس کے منہ تک لے گئے, لیکن جیسے پانی کا پیالہ اس کے ہونٹ تک جاتا اس بزرگ کی روح نکل جاتی ہے, بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اتنی محنت سے میں پانی لے کر آیا اور پانی یہ پی بھی نہیں سکا, ہونٹ تک لے گئے کہ اس کا انتقال ہو گیا. اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک بندہ زندگی بھر اس کی عبادت کرتا رہا, لیکن آج اس نے ایک گھوٹ پانی پینے کا بھی موقع نہیں دیا اپنے بندے کو. اٹھتے ہیں, پانی کا گلاس اٹھا کر زمین پر پٹک دیتے ہیں پیالہ اور کہتے ہیں اللہ یہ تیرا نیائے, یہ تیرا ججمنٹ, یہ تیرا انصاف صحیح نہیں ہے, معاف کیجئے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, تورات کے اندر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں, اور کسی بھی جملوں کو ہو ویسے ہی بیان کر دینا یہ غلط نہیں ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تورات کہتی ہے کہ موسیٰ نے اللہ سے کہا یہ تیرا انصاف سمجھ میں نہیں آیا, اس بندے نے زندگی بھر تیری عبادت کی, سجدہ کیا, رکوع کیا, اور آج تو نے اس کو 2 گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیے. ارے اٹھا لیتا لیکن پانی تو پی لینے دیتا. آواز آتی ہے اے موسیٰ میں نے اس بندے کو کیوں اٹھایا یہ تم نہیں جانتے, تم تو آج اس جنگل میں پہنچے ہو, آج سے پہلے اس نے تو جب سے ہوش سنبھالا تب سے وہ میری عبادت کر رہا ہے. آج تک اس جنگل میں اس کو کھانا کون کھلاتا تھا؟ کہا اللہ تو. آج تک اس بندے کو پانی کون پلاتا تھا؟ کہا اللہ تو. کہا آج تک اس بندے کو کھلانے پلانے والا میں تھا, لیکن آج میں نے اپنے بندے کو اس لیے اٹھا لیا ہے کہ آج 2-3 دن سے میں نے پانی اس کو نہیں دیا, 2-3 دن سے کھانا نہیں دیا. تو آئے موسیٰ جب زندگی بھر میں کھلاتا رہا, زندگی بھر میں پلاتا رہا, کھانا میں دیتا رہا, پانی میں دیتا رہا, لیکن آج میرے بندے کو جب پیاس لگی تو اس نے پانی مجھ سے نہیں مانگا, تجھ سے مانگ لیا. اے موسیٰ میں نے اس لیے اس کو اٹھا لیا کیونکہ اس نے پانی کا سوال مجھ سے نہیں کیا, تجھ سے کر لیا ہے. اے موسیٰ میں دنیا والوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو موسیٰ جیسا ایک نبی ہے جس کو میں نے تورات دی ہے, لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں وہ کسی کو ایک گھوٹ پانی بھی پلا سکے. موسیٰ تو نبی ہے, میرا رسول ہے, تیرے اندر اگر اتنی طاقت ہے کہ کسی کو پلا سکتا ہے تو اس مردے کو, اس بزرگ کو ایک گھوٹ پانی پلا کر دکھا. نہیں دکھا سکتا ہے تو, اور یہی مجھے دنیا کو بتانا ہے کہ نبیوں میں, رسولوں میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ایک گھوٹ پانی کسی کو پلا سکے. جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو
तुम भी एक गिलास पानी, एक घूंट पानी किसी को नहीं पिला सकते। ये तौरात में तौहीद का जिक्र आज भी मौजूद है। क्या कहोगे इस तौहीद के बारे में? हिंदू धर्म के बारे में तो पूछो नहीं, उसके लिए तो हम जुआ तक खेलने को तैयार हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक भारत से मलेशिया चले गए, लेकिन जर्जीज तो यही रहता है, योगी को और मोदी को ललकारता भी है, जेलों में भी जाता है, जेल को ससुराल भी अब समझने लगा है। सब कुछ होने के बावजूद आज तक कोई आदमी मुझे अपने मंत्रों के बारे में ये नहीं बता सका। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे ऊपर किसी हिंदू भाई ने आज तक केस नहीं किया है। मेरे ऊपर जितने भी केस हुए हैं वो हमारे अपने ही लोगों ने किए हैं, हमारे ही लोगों ने भड़का कर लोगों को केस हमारे ऊपर करवाए हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये होता चला आया है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरे भाइयों, घर में आग बाहर की आग से नहीं लगती है, घर में कोई चिराग जलता है तभी आग लगती है। इस घर को भी आग लगी तो घर के चिराग से ही लगी। गैर मुस्लिमों के खिलाफ मैं बोला, लेकिन गैर मुस्लिमों ने उसको अपनी अच्छाई समझकर कबूल कर लिया कि बात तो सही कर रहा है। आज तक किसी पंडित ने केस नहीं किया, केस किया तो हमारे भाइयों ने किया है। कोई बात नहीं, तुम शौक से अभी भी आजाद हो, जो चाहो करो, हम भी तुम्हें अब रोकते नहीं है, इसलिए कि किसी केस में आज तक मुझे सजा नहीं सुनाई गई है। हर केस में मैं बाइज्जत बरी होकर निकला हूं। या तो खत्म हुआ है या कोर्ट से बाइज्जत बरी होने का फैसला मेरे हक में सुनाया गया है। हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि आज मैं हिंदू भाइयों से जुआ खेलने के लिए तैयार हूं। अब आप ये मत कहना मौलाना साहब जुआ तो हराम है, क्यों? मैं इसलिए ऑफर दे रहा हूं कि आओ रख लो, तौहीद का जितना सबूत तुम्हारी किताबों में है उतना तो हमारे यहाँ यहूदियों में और ईसाइयों में नहीं है। यहूदी और ईसाइयों में नहीं है। हालांकि तौरात का ये बहुत बड़ा सबूत है। रामचंद्र जी की पत्नी सीता का हरण होता है, हनुमान और लक्ष्मण सीता को श्रीलंका से रावण के जुल्म से छुड़ा के लाते हैं। सीता जी राम के पैर छूने के लिए झुकती हैं और आशीर्वाद लेना चाहती हैं, लेकिन रामचंद्र जी अपने पैर नहीं छूने देते हैं। ये वाल्मीकि रामायण है जो 2000 साल पहले लिखी गई थी। आजकल की रामायण तो ये अभी 100-200 साल पुरानी है। उसमें राम को भगवान ही नहीं माना गया। जो वाल्मीकि जी की रामायण है, असली रामायण वो है, उसमें राम को भगवान ही नहीं माना गया और राम को भारत में पैदा भी नहीं माना गया। उसमें साफ लिखा है रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, उठा लिया और सीता को ललकारते हुए कहा, ये क्या पाप कर रही हो? नहीं, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, आपको पैर छू रही हूँ। रामचंद्र जी ने कहा, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्तु। हाय सीता, मैं तेरा राम हूँ, लेकिन तेरे राम का राम है ऊपर वाला। है सीता, मैं तेरा राम हूँ, लेकिन तेरे राम का राम तो ऊपर वाला है। है सीता, तू अपने राम को प्रणाम मत कर, बल्कि उस राम के सामने झुक जो तेरे राम का राम है, उस राम को प्रणाम कर जो तेरे राम का राम है। यही तो कहा गया है, योगी युज्जीत सतत महात्मानं रहस्य स्थित एकाकी अच्युताति मन निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। योगी यूपी वाला नहीं, ये योगी नहीं है, ये ढोंगी है। फर्क समझिएगा, योगी कहा गया है, ढोंगी नहीं कहा गया। जब ढोंगी कहा जाए तो इसको समझना। योगी युज्जीत सतत महात्मानं रहस्य स्थित। जब ईश्वर की पूजा करने जाओ तो योगी बन जाओ, यानी पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए। पूरे शरीर को झुका लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है, किसी इबादत में नहीं होती। आप देख लीजिए, मंदिर में जाइए, हिंदू लोग क्या करते हैं, बस पूरे शरीर की एक्सरसाइज नहीं है। अब तो ये भी नहीं हो रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, आप सामने हनुमान जी की मूर्ति, ढाई 10 किलो की खोपड़ी बढ़ गया। अब तो कोई उतरकर हाथ भी जोड़ना गवारा नहीं कर रहा है। हिंदू भाई अगर हो तो बुरा न माने, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, वास्तविकता है। मोटरसाइकिल पे जा रहे हूँ, नई बीवी बैठी हुई है, हनुमान जी आगे बढ़ गए, ना कोई वुजू, ना कोई हाथ पैर धोना, ना कुछ नहीं, बढ़ गया। ये रियलिटी है। मोटरसाइकिल भी नई है, उतरना भी नहीं चाह रहा, और नई है भी इसलिए कि वो भिख मंगनी है।
भिख मंगनी गाली समझते हो ना? अरे जो लड़की के बाप ने अपने दामाद को इंटरनेशनल भिखारी समझ के खैरात में दी है, उसको मैं बोल रहा हूँ, उस बात को। जितने लोगों ने अपने ससुर से जो ली है मांग मांग के, जो मोटरसाइकिलें, सब इंटरनेशनल फकीर है, इंटरनेशनल भिखारी है ये लोग। और अब जो मांगेंगे वो और बड़े होंगे, क्योंकि जानने के बाद मांग रहे हैं। तो इंटरनेशनल भिखारी अपनी बीवी को बिठाया, जा रहा हूँ, बढ़ गया। अब तो ये भी नहीं हो रहा, पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है। देखिए अल्लाह अकबर, ये पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं, पॉजिटिव, ये हाथ की एक्सरसाइज है। और ये देखिए, वैसे बहुत से लोग यहाँ भी नियत मानते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। आजकल लोगों को मिलाने की बात करना चाहिए, तोड़ने की नहीं, जोड़ना, ये वक्त की जरूरत है। जो लोग यहाँ बांध रहे हैं वो बांधे, हम लोग यहाँ बांधते हैं, बांध रहे हैं। अब यहाँ जो हाथ बांधे जाते हैं तो उसमें वजन है, एक्सरसाइज है। आपने कभी तरावी पढ़ी होंगी, इमाम साहब जब देर तक किरत करते हैं, एक पारा उनको खत्म करना है 8 रकात तरावी में, तो आपको यालमून तालमून समझ में आएगा। बस गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन तक तो गाड़ी सही चलेगी। इसके बाद इमाम साहब हो जाएंगे राजधानी एक्सप्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम यunfiqून। आखिरी वाला जुमला खींचता हुआ नजर आएगा, युनफिकून, यालमून, तालमून। अब इधर नींद आ रही है आदमी को, आप देखिएगा ऐसे पर, एक तरह से ये जो हाथ नीचे गिरा है ये एक्सरसाइज है, इस पर वजन पड़ रहा है ऐसे ये। और जो लोग ऐसे करके ऐसे बांध लेंगे, गर्दन तो ऐसे होगी लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। आप करके देख लीजिए, हाथ नहीं छूटेगा। क्यों? यहाँ प्रेशर नहीं है, यहाँ एक्सरसाइज नहीं है। और हिंदू धर्म में भी आप देखिएगा, मूर्ति के सामने जब कोई आदमी खड़ा होगा तो हाथ बांधेगा लेकिन सीने पर। हम लोग ऐसे रख लेते हैं, वो ऐसे रखते हैं, लेकिन रखता सीने ही पर है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये दिल पे हाथ रखने का मकसद ये होता है कि हम दिल से क्षमा मांगने आए हैं, और जो भक्ति पूजा कर रहे हैं वो है प्रभु, हम दिल से कर रहे हैं। हम लोग भी हाथ सीने पर रखते हैं, उसका मकसद यही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह, मैं दिल से गवाही देता हूँ कि सारी तारीफ तेरे लिए है। अर्रहमान रहीम, अल्लाह हम दिल से गवाही देते हैं कि तू बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, हम दिल से तुझे कयामत के दिन का पूरा पूरा मालिक मानते हैं, हर चीज दिल से। तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज। अब देखिए, रुकू में कमर सीधी, बल्कि कमर को इतना सीधा रखने का हुक्म दे दिया गया कि पानी का भरा हुआ लोटा अगर रख दिया जाए या बर्तन गिलास तो गिरने ना पाए। वो अलग बात है कि आजकल तो कौवे की चोंचे मारने वाला होता है नमाज में, अल्लाहू अकबर, वो कौवे की चोंचे आजकल मारी जा रही है। एक बार मैं बंगाल में कहीं नमाज पढ़ने की मस्जिद में गया तो मैं वुजू बना रहा था, एक बंगाली बेचारा आदमी आया और मेरे सामने बैठ गया क्लास में, कहता मौलाना साहब जमात खड़ी कितनी रकात हो गई है? हम बोले 2 रकात हो गई है। 2 रकात हो गई? उसकी 2 मिल गई, हमारी वुजू बनाते हुए एक और छूट गई। अरे हमारी 3 चली गई, उसकी 2 मिल गई। जबकि वुजू बनाने बैठा था तो 2 निकल चुकी थी, 2 बाकी थी। इतनी जल्दी वुजू बना के गया कि दोनों पा गया। आजकल ये मजाक हो रहा है, मजाक। जल्दी से एकदम वुजू बना के चल। अल्लाह के रसूल ने वुजू बनाने के लिए भी हुक्म दिया कि मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुजू, तुम में से जब भी कोई आदमी वुजू बनाए तो अच्छी तरीके से वुजू बनाए। अच्छी तरीके से वुजू ये होता है, दाहिने हाथ की उंगली बाएं हाथ में और बाएं हाथ की उंगली दाएं हाथ में, ये खलाल हो, ऐसे हाथ धुलना, ये फिर ये और फिर जब आप कुल्ला करें और नाक में पानी डालें तो एक ही चुल्लू पानी में आधा मुंह में ले जाएं और आधा नाक में, ऐसे आधा मुंह में और आधा नाक में। और जिस हदीस के अंदर 3 मरतबा कुल्ला और 3 मरतबा नाक में पानी डालने का जिक्र अलग अलग आया, वो हदीस ज़ईफ है, सनद के एतबार से वो हदीस कमजोर है। जिस हदीस में एक ही चुल्लू पानी में, आधा मुंह में और आधा नाक में, और उसका तरीका ये होना चाहिए, सर आधा हो गया। अब दाहिने हाथ की उंगलियों से दांत रगड़ो और बाएं हाथ का अंगूठा और ये उंगली नाक में डाल के ऐसे करो, और फिर इस अंगूठे से ये पकड़ो कस के,
मैं नहीं करूंगा जोर से, नहीं तो यहीं पर असली घी निकल जाएगा। सर्दियों का दिन वैसे ही है, ऐसे पकड़िए कस के, और फिर इसको ये दबाइए ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे झाड़िए, और फिर दूसरा पानी लेके फिर इसी तरीके से कुल्ला करिए, नाक में पानी डालिए, फिर ऐसे करिए। ये अच्छी तरीके से वुजू में ये चीज शामिल है। मैं समझता हूं कि 95% आदमी सही वुजू नहीं बना रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शरीयत के मुताबिक वुजू बनाकर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, बात आगे निकल गई। योगी उज्जित सतत महात्मानम रहस्य था, पूरे शरीर का योग, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए। अब देखिए, रुकू में बिल्कुल पानी का बर्तन गिरना ना पाए, समय अल्लाह लिमन हमीदा, फिर अल्लाहू अकबर कहकर सजदे में जाइए। आप जब सजदे में जाएंगे तो आप जब सजदे में सर रखेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन पैर में नसों के द्वारा आते आते आपके हार्ट और गर्दन से होते हुए पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपके दिमाग में पहुंच जाएगा। वो सर और वो आपका दिमाग जो 24 घंटे में आपके खड़ा रहने की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन जो आपके दिमाग तक दिन भर में नहीं पहुंच पाता, और 5 वक्त की नमाजों में आपके दिमाग तक पहुंच जाता है और आपकी दिमाग की सारी नसों को ताजगी बख्श देता है। डॉक्टर बोरिस बुकाय, अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर गुजरा है, उसने लिखा है कि अगर मुसलमान 5 वक्त की नमाज में वैसे सजदा कर ले जैसे किया जाता है, नबी ने बताया है, तो ऐसे आदमी को ब्रेन हेमरेज की बीमारी कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके दिमाग में खून पहुंचता रहता है सजदे की वजह से। कितनी बड़ी मेडिकल साइंस है नमाज के अंदर। अगर आप नमाज को उसके तरीके पर पढ़ना शुरू कर दें तो अल्लाह की कसम बाबा रामदेव की सिखाई हुई एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा रामदेव ने खुद एक जलसे में, एक अपने हिंदू महासभा में कहा था कि नमाज खुद एक एक्सरसाइज है, और मुसलमान अगर इस नमाज को पढ़ ले तो ये पूरी एक एक्सरसाइज है। भाई, एक जरूरी ऐलान ये है कि मौलाना अजीजुर रहमान साहब जो खतीब थे, उनका फर्जंद गायब है, इसलिए ऐलान किया जाए ताकि स्टेज के करीब आ जाए। उनका बेटा गायब है, यही तो गायब हुआ है, आप थोड़ा साफ कर दीजिए, बंगाली में भी करिए ताकि सब बंगला में भी बोलिए। ছেলে নাম হলো শফিউর রহমান। বক্তা মওলানা আজিজুর রহমানের ছেলে শফিউর রহমান হারিয়ে গেছে। যদি কেউ তাকে রাখেন বা তার জানা থাকে তো শুনতে পারেন। अमल नहीं कर सकता मत कर, पूजा नहीं कर सकता मत कर, तेरे लिए अरहम काफी है, यानी वो सिफारिश करा देगा और तुझे स्वर्ग में ले जाएगा। हमारे यहाँ ये बात कही गई कि गुनाहगार जहन्नम के दरवाजे पर होंगे, गुनाहगार जहन्नम के दरवाजे पर होंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के गुनाहगारों को देखेंगे कि अल्लाह इनको जहन्नम में डालने वाला है। नबी अकरम अपना सर जमीन के ऊपर रख लेंगे, नबी अकरम अपना सर जमीन के ऊपर रख लेंगे, लंबा सजदा करेंगे अल्लाह के दरबार में मैदान महशर के दिन। इतना लंबा सजदा करेंगे कि उसकी कोई इंतहा नहीं होगी। लंबा सजदा करेंगे और उसमें अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे। जब काफी देर हो जाएगी सजदे में पड़े हुए तो आवाज आएगी, इरफा रासक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाइए। बहुत देर आपने अल्लाह की हम्द व सना बयान कर ली, आए अल्लाह के नबी मोहम्मद अपने सर को उठाओ। अल्लाह के नबी अपना सर सजदे से उठाएंगे, अल्लाह के नबी अपना सर सजदे से उठाएंगे। फिर आवाज आएगी, सल, क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है मांगो। सल, किस चीज की जरूरत है मांगो। तो तुम जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, तुम जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। यानी अल्लाह कहेगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ, नबी सर उठाएंगे। अल्लाह कहेगा, मांगो, क्या मांगते हो, जो मांगोगे दिया जाएगा। वशफिर, अगर आपको किसी की सिफारिश करना है तो वो भी बोलिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। तब अल्लाह के नबी अपने गुनाहगार उम्मतियों की तरफ इशारा करेंगे, अल्लाह ये मेरे उम्मती, अल्लाह ये मेरे उम्मती। फिर अल्लाह नबी की सिफारिश को कबूल करके उन जहन्नमियों को जितनों को चाहेगा उनको जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा।
गुनाहगारों की सिफारिश करने वाला, अरहन का माना सिफारिश करने वाला, तुम्हारे लिए सिफारिश करने वाला काफी है, अरहन काफी है। हमने कहा आइंदा पंडित जी आप ये मत कहना कि हमारे यहाँ नबी और रसूलों का जिक्र नहीं है। हमने कहा आपके यहाँ नबी और रसूलों का नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र है। आपकी किताब के अंदर ये लिखा तुम्हारे लिए अरहन यानी शफीउल मुज़नबीन काफी है, वो गुनाहगारों की सिफारिश करके उनको जन्नत का मुस्तहिक बनाए। मैं इस जलसे में हूँ और इंडिया में बोल रहा हूँ और मेरी हर तकरीर रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे जाती है। तकरीर करने के बाद मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैंने नहीं बोला, लेकिन जो चीज रिकॉर्ड हो गई उसको मैंने झुठला सकता। देखो आप कह रहे हैं ये, अब आप अंदाजा लगाइए कि मैंने कितनी बड़ी बात कही है, कितनी बड़ी, और इतनी बड़ी बात कहने के बाद आगे वाली बात में मैं आपको और गवाह बना रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रही है, वो भी रिकॉर्ड हो जाए। मैंने जब ये बात कही तो इस बात का जवाब पंडित जी का नहीं था, और जेलियों के खड़े बैठने के अंदर उन्होंने हमारी इस बात को एक्सेप्ट किया था कि हाँ अरहन का माना यही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर जितनी अल्लाह का की तारीफ और शुक्र अदा किया जाए, तो जेलियों की किताब के अंदर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। सिख तो आज खुलकर हम लोगों के साथ हैं, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे वो इंडिया और पाकिस्तान की जंग का मामला हो, सिख हमारा साथ दे रहे हैं। हमारा साथ का मतलब यह है कि वो मुसलमानों के गम को अपना गम समझ रहे हैं। कोई न कोई रिश्ता तो है। गुरु ग्रंथ पढ़िए आप, गुरु ग्रंथ सिखों की किताब, और गुरु ग्रंथ के सफा नंबर 485 485 नंबर सफे पर आप मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम यूं पढ़ेंगे, दहका नूरे मोहम्मदी, दहका नूरे मोहम्मदी, दहका नबी रसूल, दहका नूरे मोहम्मदी, दहका नबी रसूल, नानक देखो कुदरत गए सभी भूल। ये गुरु ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है, दहका नबी नूरे मोहम्मदी, दहका नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। नानक जी कह रहे हैं कि लोगों, जब से मैंने नूरे मोहम्मद को यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब कुरान लेकर आए उस रोशनी को हमने देखा, और नबी को रसूल होने की हैसियत से जब से हमने पढ़ा, तो नानक जो अपनी कौम को समझाना चाहता था, अपनी बात मनवाना चाहता था, नानक अपना पैगाम भूल गया, अपना धर्म भूल गया, अपनी बात भूल गया। इसलिए कि मोहम्मद की नूर, मोहम्मद रसूलुल्लाह की किताब कुरान, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम के बाद अब नानक की तालीम की जरूरत नहीं है। नानक को वही दीन देकर आया, वही बात बताना चाहता था, लेकिन नानक ने जब नबी अकरम की नूर को यानी दहका नूरे मोहम्मदी यानी कुरान को देखा, जो किताब कुरान लेकर आए थे उसको पढ़ाओ देखा, और जो तालीम नबी ने दी, बस नबी की रसूल की वो तालीम देकर नानक को जो कुछ याद था भूल गया, यानी मैं अपनी बात वापस ले लिया, और मैंने हुक्म दे दिया कि अब इसके बाद किसी और शिक्षा की और तालीम की जरूरत नहीं। नूरे मोहम्मद और नबी रसूल जैसा लफ्ज बिल्कुल ऐसे ही लिखा हो जैसे हमने बताया, तो मेरे भाइयों अब रह क्या जाता है, अब बाकी रह क्या जाता है। हमने जब बाइबल खोली तो हमने ईसाइयों की बाइबल के अंदर उसके रोल नंबर 5 के अंदर हमने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जीसस का ये कौल पढ़ा, I will pray the Father, I will pray the Father, he shall give the another comforter. After that, I will not talk much with you because the prince of this world come. ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह रहे हैं, अब मैं तुमसे ज्यादा बातें नहीं करूंगा, अब मैं तुम्हारे दरमियान ज्यादा नहीं रहूंगा। I will pray the Father, अब मैं अपने बाप से अल्लाह से ये दुआ करूंगा, he shall give the another comforter, वो तुम्हें दूसरा प्रोटेस्टेंट दे दे, दूसरा रहबर दे दे, दूसरा रहनुमा दे दे, दूसरा मार्गदर्शक दे दे, दूसरा तुम्हें रास्ता दिखाने वाला कोई नबी दे दे। I will not talk much with you, अब मैं तुमसे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, ज्यादा वार्तालाप नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे दरमियान ज्यादा नहीं रहूंगा। क्यों? I
will not with you because the prince of this world come. इसलिए कि इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, इस दुनिया को चलाने वाला आने वाला है, इस दुनिया को सच्चा रास्ता दिखाने वाला इस दुनिया में आने वाला है। वो उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक मैं न चला जाऊं। उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। लिहाजा मैं जा रहा हूं, जब मैं जाऊंगा तो वो आएगा, तब वो आएगा। His name will be अहमद। जब वो आए तो सुन लो उसका नाम अहमद होगा। लोगों जब उस धरती पे आ जाए तो उसको इस नाम से जानना कि उसका नाम अहमद होगा। ये बाइबल में आज भी लिखा है कि ईसा मसीह ने कहा था कि उसका नाम अहमद होगा। कुरान ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कुछ कहा था, ईसा अलैहिस्सलाम के जुमलों को कुरान ने भी नकल कर दिया है। सिर्फ बाइबल में नहीं, अल्लाह ने भी नकल कर दिया है। वो इस क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ओ मेरी कौम के लोगों, ओ इस्राएल के बेटो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, मैं पुष्टि करता हूँ, तस्दीक करता हूँ उस किताब की जो मुझसे पहले नाजिल हुई तौरात, वो आसमानी किताब की। लेकिन तुम्हें शुभ समाचार देता हूँ, तुम्हें गुड न्यूज देता हूँ, तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ, तुम्हें भविष्यवाणी बताता हूँ। एक नबी मेरे बाद आएगा, एक रसूल मेरे बाद आएगा। वमुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद। ये गुड न्यूज है मेरी तरफ से कि एक नबी तुम्हारे दरमियान आएगा मेरे जाने के बाद। याद रखना, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा, उसका नाम अहमद होगा। जो बाइबल में कहा उसी को अल्लाह ने कुरान में रिकॉर्ड करके मुसलमानों को भी बता दिया कि देखो ईसाई जो कह रहे हैं वही हमने भी कहा। ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कही है, बाइबल के अंदर भी। कोई धर्म ऐसा नहीं है कि जिस धर्म के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मौजूद न हो। मैंने बुद्धा को पढ़ा, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध जानते हो कौन? वो गौतम बुद्ध जिन्होंने जमाने में मुख्तलिफ तगय्युरात देखे। उन्होंने शादी की, शादी करने के बाद देखा कि उसमें सुकून नहीं है। उनका एक बेटा भी है, उस बेटे का नाम राहुल भी है। गौतम बुद्ध के एक बेटे का नाम राहुल भी है। मेरे भाइयों, गौतम बुद्ध ने शादी की, उनके बच्चे हुए, एक बच्चे का नाम राहुल भी है। लेकिन उनको शादीशुदा जिंदगी अच्छी नजर नहीं आई, शादीशुदा जिंदगी में उनको खुशी नजर नहीं आई। उन्होंने जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए अपनी बीवी को छोड़ दिया, अपने बच्चे को छोड़ दिया और एक लाठी ली, झोला लिया, झोला अपने कंधे पे डाला, 2-3 कपड़े उस झोले के अंदर भर लिए, एक गिलास एक प्याला ले लिया और उसी झोले में डाल दिया और सच्चाई को तलाश करने के लिए लाठी लेकर जंगल में चले गए। फिर वो जिंदगी भर अपने घर में लौट कर नहीं आए, सच्चाई की तलाश में जंगल के अंदर फिरते रहे, पहाड़ियों के नीचे लेटे रहे और जंगलों की घास पौधे और जड़ी बूटियां चबा चबा कर उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। अपनी बीवी को छोड़ा, अपनी बेटी को छोड़ा, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को छोड़ा और कहने लगे दुनिया की सारी ऐशो आराम की चीजों को छोड़ दो, तब हम अपनी जिंदगी को कामयाब बना पाएंगे और मरने के बाद कामयाब हो जाएंगे। यही गौतम बुद्ध है। लेकिन जब बुद्धिज्म को हम पढ़ते हैं और बुद्धिज्म की किताब जब देखते हैं तो बुद्धिज्म के अंदर भी हमें ये मिलता है, लोगों, मैं आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, बट बुद्धा will come off the mind, his name will be Maitreya। जब हम बुद्धिज्म पढ़ते हैं तो बुद्धिज्म के अंदर भी हमें ये लिखा हुआ मिलता है। यही गौतम बुद्ध अपनी कौम से कह रहे हैं, ओ मेरी कौम के लोगों, ओ
बुद्धिस्टो, ओ बुद्ध समाज के लोगों, आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा, मैं न पहला बुद्धा हूँ, एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, और न मैं लास्ट बुद्धा हूँ, न मैं पहला बुद्धा हूँ, न मैं लास्ट बुद्धा हूँ, न मैं पहला नबी हूँ, न मैं आखिरी नबी हूँ, बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माय, बल्कि एक बुद्धा मेरे बाद आएगा, एक नबी मेरे बाद आएगा, एक ऐसा पैगंबर भी इस दुनिया में आएगा, his name will be मित्रे, his name will be मित्रे, वो कृपा करने वाला मित्रे, उसका नाम मित्रे होगा, उसका नाम मित्रे होगा। और मित्रे का अर्थ देखिए, संस्कृत के अंदर मित्र शब्द संस्कृत का है, और संस्कृत के अंदर मित्रे के माना क्या होते हैं? कृपा करने वाला और अपने शत्रु से अपना बदला न लेने वाला, दुश्मन को माफ कर देने वाला, उसका नाम मित्रे होगा। हर हाल में वो दोस्ती का दामन पकड़े रहेगा, कभी वो किसी को नहीं छोड़ेगा, अपने दुश्मन को भी माफ कर देने वाला होगा, मित्रे, ये लिखा है। आओ मेरे भाइयों, गौतम बुद्ध की इस पुष्टि और तस्दीक के बाद और भविष्यवाणी के बाद देखो, अगर ऐसा दुनिया में कोई गुजरा है तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो अपने दुश्मन को भी माफ कर रहे हैं, अपने दुश्मन को भी माफ करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा कोई है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो कभी दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, आप रहम करेंगे और अपने दुश्मन तक को माफ कर देंगे। वो दुश्मन जो कोहे तनईम के दामन में छिपा हुआ है। गज़वा तबूक से वापसी के मौके पर सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, हम बहुत थक गए हैं, कई दिन जंग में आपके साथ लड़ते रहे, थकावट हो गई है, आगे सफर करने से पहले इस जंगल में हम लोग थोड़ा सा लेट जाएं, आराम कर लें। अल्लाह के नबी मशवरा सबसे करते थे, अपनी नहीं चलाते थे, अपनी नहीं। यहाँ मदरसे की कमेटी बना दो और उसमें किसी को सदर रख दो, वो सदर अपनी चलाएगा। मस्जिद की कमेटी बना दो, सदर अपनी चलाएगा, और उसकी बात न मानी जाए तो इस्तीफा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, इस्तीफा दे दो। ऐसे सदर से क्या फायदा जो मेरी बात नहीं मानी। सदर इसलिए नहीं होता है कि उसकी बात हर हाल में मानो, सदर का मतलब ये होता है कि उसके हुक्म पर सब लोग एक साथ जमा हो जाएं और मशवरा दें। मशवरे में जो बेहतर और जिसके अंदर खैरख्वाही हो उसको अपनाया जाए, उसको माना जाए, न कि सदर चाहे गलत मशवरा दे उसी की बात मान लो। ऐसा नहीं, जैसे वो अपनी चला रहा है ऐसी आज भी हम भी अपनी चला रहे हैं। बस हमें ये बना, हाँ बात मानो मेरी, हम भी अपनी चलाना, और जो हमारी नहीं मानेगा हटो कमेटी से। सोचने वाली बात है, सोचने वाली। तो एक तरफ इस पर भी नजर डालिएगा। तो मैं कह ये रहा था कि मेरे प्यारे साथियों, हमें गौर करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, अपने हालात, अपनी सोसाइटी और अपनी समाज पे हमें नजर डालना पड़ेगा। कहा तुम्हारे लिए मित्र, अल्लाह के नबी की जिंदगी पर नजर डालो। कोई तनईम सहाबा की बात मान ली, ठीक है आप थके हुए हो, ठीक है, हमारा मशवरा तो ये है कि थोड़ा सा आगे निकल चले, लेकिन तुम लोग कह रहे हो कि सो जाएं, चलो थोड़ा सा आराम कर लीजिए। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि ये जंगल है, कम से कम जंगल को पार कर लिया जाए, क्योंकि हम लोग काफी थके हुए हैं। अगर यहाँ लेटे तो कहीं शाम ना हो जाए, और शाम को अगर चलेंगे तो खतरनाक जंगल, रात में कहीं खतरनाक है। अल्लाह के नबी हम इतना नहीं सोएंगे, हम थोड़ा सा आराम कर लें। सस्ता में कई रातों के जागे हुए हैं, कई दिनों की मार थकावट। आपने कहा ठीक है, कोई इस पेड़ के नीचे सो गया, कोई उस पेड़ के नीचे सो गया, कोई उस दरख्त के नीचे लेट गया। अल्लाह के रसूल ने भी देखा कि हाँ ये पहाड़ी है और उसके पीठ सामने एक दरख्त है, आपने भी अपनी तलवार उस दरख्त पे लटका दी और आप भी लेट गए। सब थके हुए थे, सबको नींद आ गई। अल्लाह के रसूल की नींद, जब थका हुआ हो आदमी तो नींद बड़ी अच्छी आती है। इतने में एक दुश्मन रसूल आया, काफिर। उसने देखा वाह, मोहम्मद नीचे तलवार ऊपर, हमें कुछ लाने की जरूरत भी नहीं, तलवार भी है, शिकार भी मौजूद, क्यों ना हम इसको कत्ल कर दें और 100 ऊंटों का इनाम ले ले। दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है, तलवार उठा लेता है, तलवार भी कर दिया कर, हाथ में तलवार पकड़ता है, ऊपर से कूद जाता है। जितनी जल्दी कत्ल कर दूं उतना जल्दी आराम। उतरता नहीं है, चंप लगाया, कूद गया। जैसी वो जमीन के ऊपर कूदा, हाँ आवाज आई पैरों की गिरने की। तो अल्लाह के रसूल वहीं लेटे थे, एकदम उठ गए, चौंक गए, नींद चौंक गई यार। देखा तो तलवार लेके आगे बढ़ रहा है, अल्लाह के रसूल बैठ गए। जब वो और आगे की तरफ आया
तो आप खड़े हो गए। अब उसने तलवार यूं की, करीब आया। अब गौर कीजिए, आप उसको आता हुआ देख रहे हैं, तलवार ताना हुआ देख रहे हैं। आप भाग भी सकते थे, आप चीख भी सकते थे अपने साथियों से, ए लोगों जल्दी उठो उठो उठो, ये आदमी मुझे पर हमला करने वाला है, चीख भी सकते थे। लेकिन ना आप भाग रहे हैं, ना आप चीख रहे हैं, ना आप भाग रहे हैं, ना आप चीख रहे हैं। उसको देख रहे हैं, आता है, तलवार सूंघता है और कहता है, मैं यासिमुका मिन्नी या रसूल अल्लाह। ऐ मोहम्मद, या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह नहीं, मैं यासिमुका मिन्नी या मोहम्मद। बुखारी में यही अल्फाज है। दूसरी हदीस में मैं यमनऊका भी है, मैं यमनऊका या मोहम्मद। ऐ मोहम्मद बताओ, अब तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? आप अकेले, तलवार तेज धार वाली मेरे हाथ में, आप सामने, मैं आपके सामने, बताओ, बड़ा तुम्हें भरोसा है, बताओ अब मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचाएगा? मैं यासिमुका मिन्नी या मोहम्मद, बता मेरे हाथ से तुझे कौन बचाएगा? और नबी अकरम ने सिर्फ एक जुमला कहा, अल्लाह अल्लाह, यासिमुनी अल्लाह। कौन बचाएगा? मुझे अल्लाह बचाएगा। सिर्फ लफ्ज अल्लाह। उस काफिर ने जो सुना अल्लाह, छूट गई तलवार, कांप गया, तलवार छूट गई हाथ से। उस जमाने के काफिरों को भी अल्लाह की ताकत और अल्लाह की कुदरत और अल्लाह के पावर का एहसास था। आज मुसलमान कलमा पढ़ने वाला, इधर आजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, लेकिन होठों पे चाय पीता है। आजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, खेतों में हल चलाता है। आजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, ये उसी वक्त सब्जी खरीदने और गोश्त खरीदने के लिए जाता है। आजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, ये उसी वक्त अपनी बीवी को अपनी मोटरसाइकिल पे बिठाकर ससुराल छोड़ने जा रहा है। आजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, ये इसी वक्त किशनगंज के मॉल के अंदर अपनी बीवी की नाइटी खरीद रहा है, अपनी बीवी के लिए फेयर एंड लवली खरीद रहा है। कौन खरीद रहा है? अपने लिए कपड़े खरीद रहा है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, उस जमाने का काफिर भी जब अल्लाह का नाम सुनता था तो कांप जाता था, लड़क जाता था, थर्रा जाता था। हमला करने की नीयत से आया, अल्लाह की कुदरत और अल्लाह के पावर और अल्लाह की ताकत का एहसास उसको मालूम है, हाथ से तलवार छूट जाती है। उस जमाने के काफिरों को अल्लाह पर हमसे कहीं ज्यादा भरोसा था, अल्लाह को हमसे कहीं बढ़कर माना करते थे। अल्लाह की ताकत और उसके पावर का एहसास वो हमसे कहीं बढ़कर किया करते थे। इन्नमल मुमिनूना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, मोमिन तो वो है, मुसलमान तो वो होते हैं जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए, जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनके दिल कांप जाए, उनके दिल थर्रा जाए। मोमिन तो उनको कहा गया है, हम अल्लाह का नाम सुनते हैं, खाना खा रहे हैं, हम अल्लाह का नाम सुनते हैं, बारात में शरीक है, हम अल्लाह का नाम सुनते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बारात में बैठे हैं, यहाँ अज़ान की आवाज आ रही, होटलों में चाय पी रहे हैं, यहाँ अज़ान की आवाज आ रही, हम इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं, यहाँ अल्लाहु अकबर की निदा आ रही है, हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, यहाँ अल्लाहु अकबर की आवाज आ रही है, मेरे भाइयों हम शतरंज खेल रहे हैं, यहाँ अल्लाहु अकबर की निदा आ रही है, हम खेत जोत रहे हैं, यहाँ अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, लेकिन हमारे दिल कांपते नहीं, थर्राते नहीं, लरसते नहीं। ये तो नुक्ता निकाला है मैंने, इसलिए बोलूं तो अभी पूरी तकरीर इसी पे खत्म हो जाएगी। बताए मोहम्मद, तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा? अल्लाह। सामने खड़े, न भाग रहे, न चीख रहे,
न अपने साथियों को जगा रहे हैं, काफिर को एहसास दिला रहे हैं। देख मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहादुरी पे नजर डाल, मेरी हिम्मत पे नजर डाल। तू तलवार लेके कूदा, मैंने आवाज सुनी, मैं उठ के बैठा, तू मेरी तरफ बढ़ा, मैं खड़ा हुआ, तू एक कदम और आगे बढ़ा, मैं भाग सकता था, तूने 2 कदम बढ़ाया, मैं चीख सकता था, आए काफिर, आए मुझे मारने वाले। न मैं भागा, न चीखा, न चिल्लाया, तेरे सवाल का जवाब दिया। तूने पूछा बताए मोहम्मद तुझे कौन बचाएगा? मैंने कहा अल्लाह। हाथ से तलवार गिर गई, नबी अकरम ने तलवार उठा ली। अब मुस्कुराते हुए पूछा, अब बाजी पलट गई, पासा पलट गया, अब तू बता कि तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा? बिल्कुल ऐसे समझ लो, आज बाजी तुम्हारे हाथ में, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बदले की भावना से काम नहीं किया। ये सिखाया, सीखो, मोदी जी सीखो, राहुल जी सीखो, मुलायम सिंह जी सीखो, लालू सीखो, ममता सीखो, अखिलेश सीखो, सब सीखो। दुश्मन मेरे सामने खड़ा है, मारने आया, तलवार गिर गई, मैंने उठा ली। पूछा तू बता मुझे कौन बचाएगा? कहने लगा आप ही के हाथ में तलवार है, आप ही छोड़ सकते हैं। उसका ईमान तो अल्लाह पर न था। कहने लगा आप ही छोड़ सकते हैं। मुस्कुरा कर कहा जाओ, मैंने तुझे नजरअंदाज कर दिया। और मोहम्मद रसूलुल्लाह को टेररिस्ट की तालीम, टेररिज्म की दावत देने वाला मानने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आतंकवाद का परवान चढ़ाने वाला मानने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस्लाम तलवार के जोर से फैलाने का इल्जाम लगाने वालों, तलवार नबी के हाथ में मार सकते हैं। सहाबा अभी तक सोए हुए, लेकिन इसके बावजूद इमाम कायनात की ज़बान से जो जुमले निकलते हैं वो जुमले ये, जाओ आए मुझे कत्ल के इरादे से आने वाले, जा मैंने तुझे माफ कर दिया, जा मैंने तुझे नजरअंदाज कर दिया। 1400 साल पहले की ये शिक्षा मोदी जी के लिए भी है, अमित शाह के लिए भी है, राहुल के लिए भी है, अखिलेश के लिए भी है, मुलायम के लिए भी है, लालू के लिए भी है, नीतीश के लिए भी है। मेरे प्यारे साथियों, ये शिक्षा सबके लिए कि कभी किसी की बदले की भावना से काम न करना। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने छोड़ दिया और अपने मित्र होने का, अपना कृपालु दयावान होने का सबूत पेश कर दिया। आपने छोड़ दिया ताकि लोगों गौतम बुद्ध की भविष्यवाणी जब पढ़ो तो सोच लेना कि मित्र कोई और नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ईसा मसीह की तालीम को तो सोच लेना हम कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। जब जैनियों की किताब पढ़ो और अरहन का शब्द आए तो सोच लेना वो कोई और नहीं, जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये सबूत दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह। माफी की जहां तक बात है तो ऐसी ऐसी माफियां, ऐसे काम किए नजरअंदाज कर दिया, ऐसे मौके पे नजरअंदाज किया कि आप सोच नहीं पाएंगे। आपकी अपनी बेटी ज़ैनब, आपकी अपनी बेटी ज़ैनब ऊँटनी पर सवार है, पेट में बच्चा है, हमल है, ऊँटनी पर बैठी है और हजरत अली ऊँटनी की लगाम पकड़ के ले जा रहे हैं। हिवालत में अस्वद काफिर है, नबी का दुश्मन है, उसने ऊँटनी को तीर मार के जख्मी करना चाहा, उसने तीर मारकर ऊँटनी को जख्मी करना चाहा और जैसे ही तीर मारा, तीर निशाने से चूक गया और वो तीर हजरत ज़ैनब के पेट में लगता है। हमला है, पेट में बच्चा है, हमल पेट में, तीर जैसे ही पेट में लगा, हमल फट गया, पेट फट गया। ज़ैनब ऊँटनी से नीचे गिरी, जब गिरी तो पेट का बच्चा भी जमीन पर गिर गया। अधूरा बच्चा था, इनकम्प्लीट था। गिरते ही उस बच्चे की रूह निकल गई। नबी अकरम को पता चला, इस हाल में आप अपनी बेटी को पकड़ के लाए, पेट पर गमछा बांधा।